आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। उनके लिए मेरा एक शेर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। झूठ और फरेब की राजनीति से निकलकर मुसलमान बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर 30% से लेकर 35% मुसलमानों का वोट मिलने जा रहा है। तो जो लोग मोदी जी को चोर कहते हैं, उनको मेरा कहना है, उस युवराज को और युवराज के चेलों को, तू जो बदजुबान बोलता है, तेरे जबान से तेरा खानदान बोलता है। तेरी जबान पे पाकिस्तानी चर्चा है और मेरी जबान से हिंदुस्तान बोलता है। ये उन लोगों को सिंचानी है, और आज हम बहुत भारी मतों से जीतना चाह रहे हैं और सहारनपुर की जो जीत होगी उसमें मुसलमानों की भागीदारी निश्चित रूप से होगी। पर एक छोटा सा सवाल है सर, अब की बार, पिछली बार तो 73 था, अब की बार क्या होगा? देखिए, पहले हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगे थे, अब हम नरेंद्र मोदी जी के काम पर वोट मांग रहे हैं। हमें नरेंद्र मोदी जैसी सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी नेता नहीं बल्कि हीरो है, हीरो। जनता मर जाएगी अगर नरेंद्र मोदी नहीं जीते। अच्छा जी, भैया हम चाहते हैं कि इस साल भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया हमारे साथ में। हमारे जो है बच्चों के साथ में भी बहुत अच्छा विकास चल रहा है और हम चाहते हैं, हम साथ हैं मोदी जी के और मोदी जी की सरकार आए। मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी पूरा साथ। 400 सीटें आएंगी, 400 सीटें मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी नेता ही नहीं है, वे तो हमारे पूरे हीरो हैं मुसलमानों के, और जीतेंगे और जीत के रहेंगे। नहीं हम ही जहर खा के मर जाएंगे। चांद बेबी जुबैरी नदीम कॉलोनी से 66 से शरत रख ली, अगर हमारे नरेंद्र मोदी नहीं जीते हम आत्महत्या कर लेंगे। बहुत बढ़िया जी, क्या लगता है जी? ಅನುಭವ ಜೊತೆಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂತವ್ರು, ಏನು ಇಲ್ದಿರ ಬರೀ ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನನಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಂದಿದೆ? ಖಂಡಿತ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೂ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಆದರೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಯಸ್ಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ವಲಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ವಲಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒನ್. Well, I would rate the Modi government to have performed very well for very important reasons. One, our GDP has grown by 76 lakh crores from the time he came to power till 2019 March, if you look at estimates, and that is very large. The inflation during this period has been only 4.5%. The last UPA government grew the GDP by 56 lakh crores at market value, and the average inflation was 10%. So GDP has been higher, inflation has been lower. That means our savings have been protected. If I put money into a bank deposits and earn 7%, and inflation is 4.5%, I earn 2.5%. If I put money into a bank deposit, I get 8.5%. Inflation 9%, I lose my money. So in the UPA 2 era, all of us lost our money. Savings are lost. The middle class has been devastated. The poorer class have been devastated. So on top of it, the economic performance has been very good. Second, the Modi government has spent much more on infrastructure than the previous two UPA governments. What they have spent in the 5 years that they've been there, I think is almost equal to what the UPA has spent over the last 10 years. We have seen many more roads, many more bridges. The Northeast has developed. The railways infrastructure has gone up very largely. I think the railways are spending something like about 6.5-7 lakh crores for the last 5 years. And they've been rejuvenated. There are no unmanned railway lines anymore, because railway crossings anymore. And we have seen the airports work at peak capacity. Airport traffic has grown in double digits for the last 5 years. We've seen the Ganga getting cleaned. We've seen the ports grow up. In all facets of our infrastructure, I think it's done very well.
The third, there has been no corruption in Delhi that we know. The Rafale thing is totally bogus. There is no 30,000 crores that Narendra Modi can take and give it to anybody. Just other day, Rahul Gandhi said that he's taken the money from the people of Andhra Pradesh. I'm sure Babu will be surprised that where was the money that he couldn't take for his own people that Modi took to give it to from the people of Andhra Pradesh. It's a joke, and that they're lying through their teeth, and not only the people of this country are asserting this teeth. So I think on all economic indicators, jobs, I think totally about 3.5 crores to 4.5 crores jobs have been created in transportation sector based on. मैं जब भी किसी देश की यात्रा करता हूं तो मेरा प्रयास होता है कि वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से अवश्य मिलूं। इन्हीं यात्राओं में आप में से कई लोगों से मुझे मिलने का सौभाग्य भी मिला है। मेरे इस एफर्ट्स का सबसे बड़ा कारण है कि मैं मानता हूं कि विश्व के साथ भारत के संबंधों में के लिए यदि सही मायने में कोई परमानेंट एम्बेसडर है तो वो भारतीय मूल के लोग हैं, आप लोग हैं। और इसलिए और हमारा सतत प्रयास है कि हम प्रवासी भारतीयों से लगातार जुड़े रहें, उनकी समस्याओं को हल करें। एक समय में प्रवासी भारतीयों के लिए एक अलग मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन हमें प्रवासी भारतीयों से फीडबैक मिला कि विदेश मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी महसूस हो रही है। आपकी राय में दोनों मंत्रालयों को मिलाने का सुझाव था। आपको याद होगा कि पहले पीआईओ और ओसीआई स्कीम अलग अलग होती थी और अधिकांश लोगों को इनके बीच अंतर तक का ज्ञान नहीं था। हमने इस प्रक्रिया को सरल किया और दोनों को मिला के एक स्कीम बनाई। हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी न सिर्फ भारतीय नागरिकों बल्कि प्रवासी भारतीयों की समस्याओं पर भी 24/7 वो आपको सक्रिय नजर आएगी। उनके नेतृत्व में विदेश मंत्रालय ने काउंसलर ग्रीवेंसेस की रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिस्पांस के लिए मदद पोर्टल की व्यवस्था खड़ी की है। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन अब हर अल्टरनेट ईयर पर किया जा रहा है। साथ ही साथ रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाए जा रहे हैं। सुषमा जी अभी सिंगापुर में ऐसे ही एक सम्मेलन में शामिल होकर के आई है। Why not Rahul Gandhi? Because I feel he's stupid. Sir, yaar ye. Waiting for you guys. I'm monitoring in TV5 with YouTube, but I'm not get a chance. Actually, I got a chance today. Okay. See, Modi is the gem person. He is the leader for the India. Okay. But others, including Rahul Gandhi, Devegowda, they are working for their benefits. Okay. Modi is working for country. Very simple. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು इसका पानी का बहाव किस तरफ जाएगा? पानी पिघलेगा। पानी तो सर वो नीचे से हम ले जाके मंदाकिनी के साइड में निकल जाएगा, ढलान उसी साइड पर, तो वो पानी तो नेचर को उसमें जो भी बर्फ निकलेगा वो सर पिघलेगा, वो वहाँ जाएगा। यहाँ जो बर्फ पिघले तो बर्फ भर जाने वाला है, एकदम भरेगा सर, एकदम भरेगा। तो वो पिघलता रहेगा। नीचे में ड्रेनेज की व्यवस्था है, कुछ हीटिंग सिस्टम भी लग सकता है। जो ये सर वो उन्होंने जो मॉडल दिया था सर, उसमें ये था कि जब ये बनेगा सर इस पे हीटिंग सिस्टम लगाएंगे। हाँ, ताकि अगर कहा था सर पीछे भी हीटिंग सिस्टम का, तो और सोलार से भी चल सकता है यहाँ पे, एकदम करेंगे सर, सोलार से हो जाएगा तो निकल सकता है। क्योंकि नेचुरल ड्रेनेज है सर। अगर बर्फ जमा जी और तो ये गड्ढा होगा, तो बर्फ पिघलने में तो बहुत देर लगेगी, और बर्फ ऊपर का पिघलेगा तो कोई मतलब नहीं है, नीचे का पिघलना चाहिए, तभी वो बहेगा।
मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कभी कोई शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी।